अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो। नाउ स्टोइचियोमेट्री के दो तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है और दूसरा लैबोरेटरिकल एप्लीकेशन होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन या एप्लीकेशंस में एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड, आई मीन इट्स अगेन टेक्निकल नेम ओनली। जो प्रोसेस स्टोइचियोमेट्री में मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसको अचीव करने के लिए एक टेक्निकल नाम दिया हुआ है। दैट टेक्निकल नेम इज टाइट्रेशन। ठीक है, बट टाइट्रेशन इज समथिंग जो कि हम लोग बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आई विल कम टू दिस वर्ड। इट्स द word which I'm talking about is, just quantitative analysis, stoichiometry and quantitative analysis. Okay. Stoichiometric calculations या फिर quantitative analysis के लिए quantitative analysis और सी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना एंड क्वांटिटी के टर्म्स में बातें करना। क्वांटिटी एज एन आइदर वेट और वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, इस तरह के क्वांटिफाइड स्पेसिफिकेशंस के साथ डिस्कस करना रिगार्डिंग रिएक्शंस is termed as quantitative analysis. So discussing a reaction, discussing a reaction in light of quantified values, quantified values of reactants and reactants and products, reactant and products is basically part of qualitative quantitative analysis. ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अचीव करने के लिए हमारे पास तीन मेजर मेथड्स होते हैं या तीन मेजर टेक्निकल प्रोसेसेस हम लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं। The quantitative analysis reactions is achieved through three processes. First one is gravimetric analysis. Second one is metric analysis. Third one is volumetric analysis, also known as
This volumetric analysis is conducted with the help of titration. ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होता है उसको हम लोग टाइट्रेशन के थ्रू अचीव करते हैं. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस it is achieved through it is achieved through titration. I'll discuss about titration in detail. Okay. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता लेता हूँ. देन आई विल कम टू more reasoning kind of thing. Why do we have these things? Gravimetric analysis, idiometric, volumetric हम करते क्यों हैं? Titration है क्या? इनका essence जो है that I'll be explaining. See, gravimetric analysis, gravimetric analysis is gravi and metric. Metric is measurement. Gravi is actually it is this word has been इसका source exact कौन सा word है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. It is related to gravity. ठीक है, it's related to gravity and gravity word जो होता है ना that is inherently related to weight or mass of any object. ठीक है, और अभी हम लोग acceleration due to gravity and gravity earth के respect में देखते हैं, but the word has actually evolved from किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का वेट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेट फील कर रहा है या वेट अगर उसका कुछ है दैट इज रिलेटेड टू फोर्स एंड बाकी सारी चीजें. फोर्स mg होता है एंड देयरफॉर वेट होता है. सो ये ग्रेविटी वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू एक्चुअली वेट ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर में इनिशियली वेट बोलते थे बट बाद में हमको पता चला इट्स मास. एंड उसके पहले हमने ये वर्ड क्वाइन कर रखा था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. ठीक है, एंड देयरफॉर वी आर कैरिंग इट फॉरवर्ड. सो whenever we do any analysis or any calculations in mass representation, ठीक है, mass representation of reactants and products, then we say that we are doing gravimetric analysis. अब point ये है कि mass interpretations हम कहाँ पर करेंगे? When it is going to be easier for us to do a mass interpretation. See, suppose अगर मेरे पास liquids, reactant and product है, will it be feasible for me to do a mass calculations or mass measurement, especially weighing of liquids या फिर weighing of gases अगर मुझे करना है? Will that be a convenient thing? Probably not. Compared to it, doing a mass measurement or weight measurement of solids are relatively easier task. ठीक है, solids के लिए entity जो हम measure कर सकते हैं ज्यादा easily, that is its mass. ठीक है, liquids के case में the thing which we can measure easily is their volume. Gases के case में भी it's their volume which can be measured easily compared to their mass. Am I making sense? ठीक है, are we all getting this point? And therefore, whenever we have reactants and products in form of solids, ठीक है, whenever we have reactants and products in form of solids, it is easier for us to measure them in terms of mass and express their relationships in terms of mass. खैर मास के टर्म्स में हम करें या ना करें दैट्स आवर चॉइस, बट उनका इनिशियल मेजरमेंट जो होता है ना वो मास के टर्म्स में हम ज्यादा इजीली कैलकुलेट या मेजर कर पाते हैं. अब रही बात कि अगर उनके रिलेशनशिप को अगर मास एंड मास टर्म्स में ही हम डिस्कस करते हैं then that is going to be termed as gravimetric analysis.
calculation in terms of mass, sorry, measurement in terms of mass, and then expressing the relationship between reactants and products in terms of mass is known as gravimetric analysis. ठीक है? Is it okay? Gravimetric analysis समझा हमें? Yes, sir. What about Yes, others? sir. Okay, just one second. Yes. So gravimetric analysis का थोड़ा सा वर्ड डेफिनेशंस नोट कर लेते हैं. वैसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इसका डेफिनेशन नोट करने का. Still, it's better. Sir, gravimetric analysis includes all other concentration terms and नहीं other नहीं formulas which नहीं 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 नहीं. Concentration terms पे जब भी हम आते हैं ना, it is termed as volumetric analysis. I'm coming on that. then mass by mass percentage. सिर्फ मास बाय मास वाला एक्सप्रेशन परसेंटेज के टर्म्स में कर रहे हो, इट्स एक्चुअली मास बाय मास रिलेशनशिप. इट्स नॉट मास बाय मास बट मास टू मास रिलेशनशिप. वो मास बाय मास परसेंटेज, दैट जस्ट एक्सप्रेशन. पूरे सिस्टम मिक्सचर जो है उसमें किसी एक कंपोनेंट का मास कंपेयर टू द टोटल कंपोनेंट, टोटल सिस्टम के मास का कितना है, दैट इज मास बाय मास एक्सप्रेशन. ठीक है? तो यहाँ पर अगर एक दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक रिएक्टेंट का मास बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, दैट इज मास बाय मास परसेंट, अ वे टू एक्सप्रेस द मास. ठीक है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इट इज डायरेक्ट मास टू मास रिलेशनशिप. आई विल एक्सप्लेन. थोड़ा सा लाइक अभी मे बी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट अभी थोड़ी देर बाद मैं एग्जांपल्स लेके करूंगा ना, इट विल बिकम क्लियर. ठीक है? ये टर्म्स पहले मुझे नोट कर देने दो एंड देन इट विल बिकम, मतलब 15 मिनट में आप लोग को सारी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. सॉलिड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. देखो एक चीज जैसे मैं बोलूं कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सॉलिड सॉलिड का रिएक्शन हो रहा हो. ठीक है? या सॉलिड एक कम से कम सॉलिड हो. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं
ये सॉलिड है, इसको हमने हीट किया, ठीक है, तो ये ब्रेक करता है कैल्शियम ऑक्साइड में विच इज सॉलिड एंड CO2 विच इज गैस। अब जरूरी नहीं है कि सारे आइटम्स इसके सॉलिड ही हो, गैस भी है, बट अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मास, कैल्शियम ऑक्साइड के मास एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मास के टर्म्स में चीजों को एक्सप्लेन करूं, ठीक है, सो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है हमारा 100, so it is going to be 100 gram of calcium carbonate will decompose into 40 plus 16, 56 gram of calcium oxide or quicklime and 44 gram of carbon dioxide, ठीक है, this will be mass relationship which is going to exist। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब मैंने रिएक्शन कराया या हीट कर रहा हूँ, उस समय मे बी मैंने कैल्शियम कार्बोनेट 250 ग्राम ले लिया हो, तो 250 ग्राम अगर लेते हैं इसका, तो कैल्शियम कार्ब ऑक्साइड जो होगा वो अकॉर्डिंगली 2.5 टाइम्स ऑफ 56 ग्राम एंड 2.5 टाइम्स ऑफ 44 ग्राम्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। अब ये जो मास एंड मास का रिलेशनशिप हमने एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट किया या मेजरमेंट करके लेकर के आए एंड प्लस कैलकुलेट करके लेकर के आ रहे हो, तो ये जो मास मास रिलेशनशिप के बेसिस पर मैं सारे कैलकुलेशंस कर रहा हूँ या सारे मेजरमेंट्स कर रहा हूँ, जब तक मैं ये चीज को फॉलो कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली फॉलोइंग द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रोसीड्यूर। इज दिस क्लियर? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रोसीड्यूर, जब तक मैं सारे मासेस को मेजर, मतलब सारे रिएक्टेंट कंपोनेंट्स को मेजर भी मास के टर्म्स में कर रहा हूँ एंड उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस जो है रिएक्शन के कैलकुलेशंस, वो भी मैं मास के टर्म्स में अगर कर रहा हूँ, देन व्हाट प्रोसीड्यूर आई एम फॉलोइंग ग्रेविमेट्रिक प्रोसीड्यूर। इज इट ओके? और ग्रेविमेट्रिक Sir, need to एनालिसिस प्रोसीड्यूर। roll यस, up your screen. यस, any doubt in this gravimetric analysis procedure में, just in terms of definition? सर Have you तो been जहाँ पे able? मास रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्राफोमेट्रिक एनालिसिस, क्या क्या, सॉरी? जिधर हम लोग मास में सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्राफोमेट्रिक एनालिसिस। राइट, राइट, रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और मेजर, मतलब मेजर MAJOR मेजर या इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये होता है, मेजरमेंट जो लेते हैं ना हम, मेजरमेंट, ठीक है, वो हमेशा मास के टर्म्स में ही लेते हैं एंड ऑब्वियसली मास के टर्म्स में ले रहे हैं तो ये ज्यादा कन्वीनियंट तब होगा जब मेरे पास सॉलिड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हो। अब लिक्विड या गैस रहेगा तो उसका मास लेने में, जैसे इस CO2 का मास लेने में, या सारे के सारे गैसेस रहेंगे तो सारे गैसेस का मास लेने में हमको काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्राइमरली जब मेरे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सॉलिड में होते हैं, सॉलिड फेज में होते हैं, देन दिस इज समथिंग व्हिच इज कन्वीनियंट फॉर अस टू यूज, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट सारे मास के टर्म्स में करेंगे और मेजरमेंट मास के टर्म्स में कर रहे हैं तो एक्सप्रेशंस भी मास के टर्म्स में लिखना, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी विल डू। ग्रेविमेट्रिक के बाद दूसरा जो एनालिसिस होता है, दिस इज समथिंग, ये वाले जो मतलब है, दिस इज नॉट अ वेरी लाइक बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोग के लिए नहीं है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के टाइम पर भी हम लोगों ने इस चीज को देखा है, सो दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट थिंग इज इडियोमेट्री, which is the first thing which I'm going to discuss in detail, ठीक है। इसमें कुछ डिटेल में डिस्कस करने लायक है नहीं,
मास के टर्म्स में चीजें कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, उसको या तो मोल्स के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय मॉलिक्यूलर वेट टेकन इन ग्राम्स। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 200 ग्राम हमने लिया, 100 ग्राम 1 मोल बनाता है, तो 200 ग्राम कितना मोल बनाएगा? 2 मोल बनाएगा। इसका 56 ग्राम 1 मोल बनाता है, तो 2 मोल के लिए कितने ग्राम्स लेने होंगे? 56 इंटू 212। 2 मोल्स के लिए 88 ग्राम, या 2 मोल लेंगे तो उसका वेट 88 ग्राम हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मास रिलेशनशिप में चीजें एक्सप्रेस करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। और दैट वी हैव ऑलरेडी सीन और डन इन बेसिक स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। द नेक्स्ट वन इज इडियोमेट्रिक एनालिसिस। इडियोमेट्रिक एनालिसिस के अंदर में अगर मेरे कंपोनेंट्स, रिएक्शन के कंपोनेंट्स आर गैसियस, मे बी ऑल, मे बी मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, जैसे 4 चीजें इन्वॉल्व है, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, और उसमें से 3 चीजें गैसियस है, then it becomes convenient for us to use or to represent facts in terms of volume, gaseous volume के terms में चीजें represent करना it becomes easier task, या हमारे लिए measure करना in terms of gaseous volume, that will also be a convenient task, ठीक है, compared to measuring the weight of a gas. Am I making sense? अगर मेरे पास अगर मेरे पास गैस आता है, तो उसका वॉल्यूम मेजर करना विल बी इजियर टास्क फॉर अस, इजंट इट? हेलो, हेलो, एम आई सर ऑडिबल? आपने क्या हुआ? Yes, sir. सर आपने जस्ट कुछ तो पूछा। हाँ, मैंने जस्ट ये पूछा कि गैसेस के लिए वॉल्यूम मेजर करना इजियर टास्क होगा या उसका मास मेजर करना इजियर टास्क होगा? व्हाट्स योर टेक Volume ऑन measure. वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर Sir, we करना? can take any vessel and then just measure the volume. राइट, राइट, ठीक है। सो दैट इज the key for, or that is the fundamental for idiometric analysis, ठीक है। Uh, so idiometric analysis is, or idiometric analysis procedure is measuring reactants and reactants and products in terms of volume occupied used when majority reactants products are in gaseous phase. All expressions
the basis of gaseous volume. ठीक है. Idiometric एनालिसिस को जब हम कंडक्ट करते हैं ना, तो we actually perform this exercise in a special laboratory setup called यूडियोमीटर. ठीक है. यूडियोमीटर होता है एक चीज, and wait एक सेकंड मैम. वेट फॉर. ओके. अब गैसेस एनालिसिस के टाइम पर वो वहां पर आइटम्स क्या क्या यूज करते हैं और वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये लिस्ट हमें पता होनी चाहिए. एंड द थिंग is the next which I am going to give you. सर ये पीछे से कंटिन्यू करना है ना दिखना. क्या क्या? हाँ.
Sir, can you scroll? क्या हुआ? Sir, can you scroll up? हो गया ऊपर का नोट करके? सर वो सिर्फ एक Sir, सर नहीं sir. थोड़ा सा ही बाकी है सर, वो पूरा दिखाना। Sir, please will you scroll up? हाँ तो पूरा ही दिखा रहा हूँ, पूरा ही है। सर हो गया। हो गया? बाकी लोगों का? हो गया। हो गया सर sir. ऊपर सर हो गया हो सर आपने बोला था कि CO को कुछ और भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड को और को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं, बट तब उसको तब कार्बोनिल बोलते हैं जब वो लिगेंड के फॉर्म में यूज हो रहा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को और कुछ नहीं बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल तब बोलते हैं जब वो किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में लिगेंड के फॉर्म में यूज हो रहा होता है। ठीक है ना? मतलब ब्रैकेट में ऐसे कुछ लिख रहे हैं, निकल कार्बोनिल इसको बोलेंगे। सर फिर रेडिकल्स क्या रहता है, मतलब क्या क्या? सर रेडिकल्स क्या रहता है? रेडिकल्स? Silicon. हाँ बताता हूँ। रेडिकल्स जो होते हैं ना, दे आर जैसे सपोज मीथेन है, ठीक है, CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, और हमने हीट के थ्रू काफी हीट प्रोवाइड किया जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया हुआ है एक दूसरे के साथ। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो ये इस तरीके से ब्रेक करता है कि ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। ठीक है, तो उस सिनारियो में बनेगा क्या? CH3, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दूसरा H जो होगा इसका भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल डॉट से रिप्रेजेंटेड होगा। अलग से डॉट से रिप्रेजेंट करने के पीछे लॉजिक ये होता है कि ये थोड़ा सा एक्टिव इलेक्ट्रॉन होता है। एक्टिव इलेक्ट्रॉन या फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों स्पीसीज का एनर्जी जो रहता है ना, दे आर मच हायर एंड दे आर इन फैक्ट एक्टिवेटेड। ठीक है, these are activated entities, high energy entities। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, they always try or find somebody to react with such that they can minimize their energy। ठीक है, इस एंटिटीज को ही हम रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। ठीक है, या फिर हम लोग वर्ड फ्री रेडिकल भी यूज करते हैं इनके लिए। So free radical are species in which a covalent bond has been homolytically broken down। ये सारे definitions chemical bonding में आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा, so wait till then। तो
होमोलाइटिक क्लीवेज इनका होता है, और होमोलाइटिक क्लीवेज में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों एटम्स के बीच में शेयर्ड हो जाते हैं। देयर कैन बी हेटेरोलाइटिक ब्रेकेज, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ या इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाता है तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर मान लो H ना हो करके Cl रहे तो फिर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तब वो रेडिकल नहीं रहेंगे। रेडिकल तभी सिर्फ रहते हैं जब होमोलाइटिक क्लीवेज हो करके 1 1 इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीसीज पर आ जाए। यहाँ पर ये बता रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इस फॉर्म में है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर में है ये, तो दिस इज गोइंग टू बी CO इज गोइंग टू बी नेम्ड एज कार्बोनिल, ठीक है। अदरवाइज इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली। सर अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो दोनों के पास दो आयन है। हाँ, नहीं, डबल बॉन्ड वाले अगर डबल बॉन्ड वाले फ्री रेडिकल के फॉर्म में जनरली ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड निकल करके अचानक से टूट करके और फ्री रेडिकल जनरेट नहीं करता है। एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, और उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी कहाँ से, ठीक है। मतलब ऐसे दिमाग में अगर आपके आ रहा हो कि सर स्टोव या फर्नेस में हीट करके हम लेते आएंगे, तो डू यू हैव एनी आइडिया फर्नेस का मैक्सिमम टेम्परेचर आप क्या अचीव कर सकते हो? So 2500 degrees Celsius. लगभग ठीक है, इतने से काम चल जाएगा हमारा। 2500 डिग्री सेल्सियस, व्हाट डू यू थिंक, कैसा टेम्परेचर है? इज इट वेरी हाई, वेरी लो? So very high. So it will be 2773 Kelvin. वेरी गुड। बट वो वेरी Sir, हाई but नहीं, वो वेरी हाई I नहीं will है। be 5000 something Kelvin. नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। सन के कोर का टेम्परेचर मिलियन डिग्री सेल्सियस तक है, मिलियन केल्विन। ज्यादा एंड कम का नहीं, बट हाँ, that 2000 though it appears to be very high for most of the processes we have on earth surface, uh, that temperature is not sufficient to break a double bond directly, ठीक है। Yeah, sir. So the melting point of डबल highest melting बॉन्ड point. डबल बॉन्ड को होमोलाइटिकली ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो 2700 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं मिल पाती है, इन शॉर्ट, ठीक है। सर वो क्या लिखा है P4O10 के बाद से क्या लिखा है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस। सर तो कितना टेम्परेचर लगता है उसको ब्रेक करने में? क्या क्या? कितना टेम्परेचर लगता है सर? अब सारी चीज को ब्रेक करने में एक ही जैसा टेम्परेचर नहीं लगेगा ना। Different things will have different strength and they will require different amount of energy. That will depend from bond to bond. Sir, I have a small doubt that, sir, why don't you use Kelvin scale as in our daily life? There is no reason, ठीक है। बस ये है कि कैल्विन स्केल का इवोल्यूशन जो हुआ है वो रिलेटिवली लेट से हुआ है,
ठीक है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट वेयर in existence long before Kelvin scale came into being. ठीक है ना? ये एक प्राइमरी रीजन है, रीजन हो सकता है फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ द सेम स्केल. इट्स लाइक सदियों की परंपरा रही है डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस करने की, तो वी आर डूइंग इट लाइक दैट ओनली. देयर इज नो रीजन, पर्टिकुलर रीजन कि इसकी वजह से ही हम सेल्सियस को यूज करते हैं इन प्रेफरेंस टू केल्विन. ठीक है, शायद लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरप्रेट करना एंड समझना ज्यादा आसान है केल्विन सॉरी सेल्सियस स्केल में. दैट कुड बी, बट दैट इज नॉट द रीजन. द मेन रीजन इज वो शुरू से होता आया है और वो गलत नहीं है. दैट इज द ट्रू थिंग विच ड्राइव्स की ठीक है आगे भी उसको कंटिन्यू करते हैं. अगर केल्विन पहले आ गया होता तो इट वुड हैव बीन केल्विन, जो कि ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा होता. ओके, once there are 2-3 small points or informations. H2O, I mean if there is a product called H2O, मतलब प्रोडक्ट कहीं पर फॉर्म हो रहा है जो वाटर है, ठीक है ना, तो हमें एक्चुअली टेम्परेचर का कंसिडरेशन रखना होता है. ठीक है, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है. अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है मतलब रूम टेम्परेचर पर, if nothing, no information regarding temperature is provided, that means we are operating at room temperature. और रूम टेम्परेचर पर वाटर कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा. एंड देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी इसकी क्या होगी, जीरो. गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड्स की वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो होती है सॉलिड्स की. अगर स्पेसिफाइड है टेम्परेचर 100 डिग्री 200 डिग्री, तो 100 डिग्री अबव अगर टेम्परेचर या इक्वल टू भी है तो फिर टेम्परेचर इज greater than or equal to 100 degree Celsius, it is going to be gas, used as gas. And gas phase रहेगा. And now volume will be considered. Volume will be considerable. Considerable. Clear? अच्छा, do we have idea about what is coal gas, what is Mars gas, water gas, producer gas? सुना है कभी इन गैसेस के बारे में? No, sir. वेरी गुड, तो नोट कर लेते हैं. Coal gas is a mixture of hydrogen, methane and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ मीथेन नहीं होता है, मीथेन के साथ साथ कुछ हायर अल्केन्स भी रहते हैं. हायर अल्केन्स मतलब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी थोड़े थोड़े रहेंगे, बट वो बहुत ही थोड़े रहते हैं. इतने थोड़े रहते हैं कि हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. कोल गैस के अलावा होता है मार्स गैस. ये सीधी सीधी चीज होती है, ये CH4 को बोलते हैं मार्स गैस. देन वी हैव वाटर गैस. H2 plus CO, carbon monoxide plus hydrogen is termed as water gas. बनता कैसे है, तो वाटर को रेड हॉट कोक से पास करते हैं. रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक से पास किया तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाता है और H2 बाहर रह जाता है. ठीक है, दिस इज वाटर गैस.
generation, back generation of this is called reverse water gas equation. Reverse water gas equation. और water gas के बाद the last thing is producer gas. This is also known as wood gas. Wood gas. And it is N2 plus carbon monoxide, Cl. Is it okay? Clear and noted. So can you give a minute to note? हाँ, दो छोटे छोटे प्रिंसिपल और बता देता हूँ and then we will move on into some calculations. ठीक है, Avogadro hypothesis क्या है? What is Avogadro hypothesis? It's directly proportional to volume is going to be sorry, volume of gas is directly proportional to number of particles in them. ठीक है? Is it okay? So by this hypothesis, we get later to know that gases exist in diatomic हाँ, states. ठीक है, वो बात Polyatomic हमें पता states. चला. So एक चीज तो ये equal volume gases contain equal number of particles और दूसरी चीज ये होती है कि at STP 22.4 liter of any gas will be equal to 1 mole of that gas. So ये दो important चीज होती हैं जो हमें एडियोमेट्री के अंदर में यूज होती है.
ठीक है, पहला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कंटेन कर रहे हैं मतलब उसका मोल्स जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम, क्योंकि जितने पार्टिकल्स हैं, अगर दो अलग अलग चीजें लेते हैं, जैसे मैं हाइड्रोजन का लेता हूँ 50 पार्टिकल और नाइट्रोजन का 50 पार्टिकल लेता हूँ, पार्टिकल्स अगर सेम है तो मोल्स सेम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Avogadro number that is 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23, इससे डिवाइड करेंगे हम तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं हमको, तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स 50 बाई दिस नंबर एंड इसका भी नंबर ऑफ मोल्स 50 बाई दिस नंबर। तो अगर पार्टिकल्स का काउंट सेम है मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएंगे। इज इट ओके? एंड वेट के साथ मोल्स को कैसे रिलेट करते हैं? तो वी हैव थ्री रिलेशनशिप्स। पहला जो होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स इज number of particles by Avogadro number. 022 into 10 to the power 23 एवोगैड्रो नंबर, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, and that is also equal to weight of substance by molecular weight, molar weight in grams। ठीक है, एंड अगर गैस है वो तो फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम occupied at STP divided by 22.4। ठीक है, that is going to give us number of moles। अगर किसी गैस का और लीटर एंड मिलीलीटर में क्या रिलेशनशिप होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या फिर 1000 सीसी। किसी चीज का अगर सर आइडियल 5.6 गैस लॉ से भी आएगा ना? क्या क्या आइडियल गैस लॉ से क्या आएगा आइडियल गैस लॉ से? नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, आइडियल गैस अगर दूसरे प्रेशर और टेम्परेचर पर दिया हुआ होगा, जैसे किसी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर दिया हुआ है, आइडियल गैस लॉ क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो मान लो 1 एटमॉस्फेयर पर नहीं दिया हुआ है सारी चीजें, किसी और प्रेशर और किसी और टेम्परेचर पर दिया हुआ है, तो उसको हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए उसमें ऑब्वियसली हमको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लेना होगा। मान लो प्रेशर 2 एटीएम है, जैसे इसको एक यूज कर लेते हैं, और प्रेशर के यूनिट्स जो होते हैं वो जनरली एटीएम में होता है, 1 एटीएम, एंड 1 एटीएम इज एसआई यूनिट्स में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं। सर 1.013 बार भी होता है ना? हाँ, बार भी होता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.013 बार। कि बार जो होता है 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बार में मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मैं एसआई यूनिट्स में लेके जाने की चाह रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम का एसआई वॉल्यूम होगा 1 मीटर, मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, तो अब समझो मेरे पास कोई एक गैस है जो कि 2 एटीएम पर, 2 एटीएम प्रेशर पर कुछ में से इट इज ऑक्यूपाइंग
करते हैं 16.8 16.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर उस समय है मान लो 400 केल्विन, यानी 127 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको हमेशा हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। केल्विन में डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वी हैव टू ऐड 270। 73.16 डिग्री सेल्सियस में जो भी रहेगा उसमें 273 फॉर ऑल जनरल पर्पसेस ऐड कर लेंगे। फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस हम 273.16 ऐड कर लेते हैं, सॉरी 15 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 273.15 ऐड करते हैं। Yes, if it is in सर इसके अंदर IAT, 0.0821 यूनिवर्सल कांस्टेंट होना है। क्या हुआ, इसके अंदर 0.02 सॉरी 81 वाला यूनिवर्सल R की कांस्टेंट वैल्यू 2 होती है, 0.0821 ATM लीटर और 8.314 जूल पर केल्विन मोल। केल्विन मोल। सर और एक होता है ना 2 कैलोरी पर हाँ सर 1.99 और 2.0 कैल पर केल्विन। 2.0 हाँ सर क्या या फिर 1.99 कैलोरी पर केल्विन मोल। ये सारा ये Sir, I have R doubt this. Sir, what is this line between ATM and liter? What does it say? क्या हुआ, ATM और liter के बीच हमने वो line draw किया ना सर? हाइफन है, this is called universal gas constant. R is known as universal gas constant, universal gas सर constant। हाँ बोलिए। सर प्रेशर का जो वो 760 mm ऑफ एच या फिर 760 टॉर सर वो किधर यूज होता है? वो यूज कहीं नहीं होता है, जिसको मूड है उसको यूज करके कैलकुलेट कर लेता है, मेजर कर लेता है। कहीं एक्सक्लूसिवली यूज होता है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, सॉरी कुछ बोल रहे हो कोई? Any one of you are saying something? Want to ask anything? Sir, yes, sir. अगर टॉर हो या फिर mm of Hg या फिर सेंटीमीटर ऑफ Hg में होता तो सर तो मतलब जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यूज होंगे मतलब जो भी अपने थ्री दिया है सर उसमें और भी थोड़ा अलग अलग और वैल्यूज आएंगे ना इन विद रिस्पेक्ट टू टॉर mm of Hg एंड हाँ बिल्कुल होएंगे, नो डाउट अबाउट इट। बट पॉइंट ये होता है कि हम सारे वैल्यूज ऑफ आर याद करें, एक काम ये कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि प्रेशर का जो कन्वर्सन यूनिट है वो हम याद रख लें। तो हम दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल रहता है, उसके यूनिट्स रहते हैं। देयर आर 25-27 डिफरेंट करेंसीज जिसमें हम आर की वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। 27 अलग अलग तरीकों से हम आर की वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। सो वी कैन रिमेम्बर आइदर दोज 27 डिफरेंट ways to express R, or we can learn to express R in just one or two form, and let's have conversion factor for pressure, volume and temperature such that things can be aligned whenever we desire in whatever manner, ठीक है। तो वो दोनों काम हम दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। Is it okay? 1 atm pressure is equal to 1.013 bar, which is also equal to 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square
or Pascal. This is also equal to 760 mm of Hg, which is also equal to 760 torr. That is also equal to 76 centimeter of Hg column. ठीक है. और प्रेशर के लिए एक और भी फॉर्मूला होता है. अगर लिक्विड कहीं पे रखा हुआ है up to height h, तो pressure at its base will be equal to P naught, the atmospheric pressure. यहाँ बेस पे क्या प्रेशर होगा? तो द बेस पे प्रेशर P is going to be P naught, ऊपर जो प्रेशर है प्लस इसके थ्रू जो प्रेशर लग रहा है, और इसके थ्रू प्रेशर क्या लगेगा? इट्स गिवन बाय रो जी एच. तो इस लिक्विड की वजह से प्रेशर क्या हुआ? P माइनस P नॉट, which is equal to rho g h. Clear? G क्या है? Gravity. G is acceleration due to gravity. हाँ. Acceleration due to gravity. That has a value of 9.8. 9.8 meters per second square. So Actual P naught atmospheric pressure, ना? yes, P naught is atmospheric pressure, which is 180. So where do we write this? यहीं पे सब लिख लो. अब तुम लोग डिस्कस करते जा रहे हो तो सब यहीं पर लिखो, यहीं पर यूज होएगा. ठीक है. ये सारे इंफॉर्मेशन आप यहीं पर यूज करोगे. हाँ बोलिए ना. सॉरी सर, मैं बोल रहा था कि वो जो डेंसिटी का ही साइन है ना, जी के बाद हमारा एच हाइट है ना. हाँ, रो इज डेंसिटी. So ये फाइंड करने के लिए सारे यूनिट्स डेंसिटी SI में ऑफ होने चाहिए. लिक्विड. हाँ, क्या बोल रहे हो? So इनको यूज करने के लिए सारे यूनिट्स SI में होने चाहिए. सारे यूनिट्स एक किसी फॉर्म में होने चाहिए. एसआई में रखना है एसआई में रखो, सीजीएस में रखना है सीजीएस में रखो, बट होमोजीनियस रहने चाहिए. यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मीटर पर सेकेंड में ले रहे हो और डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में लोगे तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है. डेंसिटी अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेना होगा. दैट्स ऑब्वियस, दैट्स कॉमन सेंस, isn't it? सर ये हाइट है, वो किसका हाइट है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. ये लिक्विड जो है यहाँ पे भरा हुआ ना, उस कॉलम का हाइट क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. ठीक है. सर वो लिक्विड किसके अंदर भरा है? वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर. कहाँ पे? तो वो जो लिक्विड कॉलम है वो मतलब किसके अंदर है? कहीं पर भी रह सकता है. वो कहाँ भरा हुआ है उससे मतलब नहीं है हमको. इट कैन बी एनीवेयर. पॉन्ड में भी रह सकता है, आपके टेस्ट ट्यूब में रह सकता है, बाल्टी में रह सकता है, टैंक में रह सकता है, ओवरहेड टैंक, डैम में हो सकता है. पानी कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ता, मतलब लिक्विड कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर
ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप लोग अटेम्प्ट।